من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے نادیہ خان غازی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ جل شانہ اللہ جل مجدہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے. آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں موقع کی مناسبت بھی ہے اور اس حوالہ سے گفتگو کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ امت مسلمہ میں فساد بپا ہونے کا ایک بہت بڑا اندیشہ بھی ہے. آج 18 ذی الحج ہے اور آقا علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر مولا علی شیر خدا کے حوالہ سے آپ سب لوگ جانتے ہیں مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے فرمان سے یہ ہم سب کو 1.25 صحابہ اکرام کی موجودگی میں اعلان کیا تھا اور اعلان غدیر خم کے نام سے جو مشہور ہوا تھا کیونکہ مقام خم تھا تو آقا علیہ السلام نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو آقا علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ جس کا میں مولا جس کا میں ولی جس کا میں دوست اس کا علی دوست. الحمدللہ ہم مولا علی شیر خدا وجہ الکریم کے ماننے والے ہیں, ہم راضی ہیں, ہم خوش ہیں, بہت خوش ہیں. دوسری طرف اسی روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے. کروڑہا رحمتوں کا نزول ہو آج کے دن پر, ان کی شہادت کے دن پر. دردناک لمحات ہیں اور پینفل ہیں ہر اس شخص کے لیے جو دل میں اہل بیت طہار کی محبت و ادب اور صحابہ اکرام کی تقریم و تعظیم رکھتا ہے اس کے لیے. اور عثمان غنی کی وہ شہادت ہے کہ جو بڑی دردناک شہادت ہوئی. آپ پر نیزے کا وار کیا گیا, آپ کی زوجہ کی انگلیاں جو ہیں وہ کاٹ دی گئی اور آپ 3 دن کے پیاسے تھے اور الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں جس سے بیان کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس دوران آپ کو شہید کر دیا گیا. اللہ پاک ان کی شہادت کے صدقے میں ہمیں جو ہے وہ راہ ہدایت اور روشنی عطا فرمائے. اب یہ 2 موضوعات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ کے 2 باتیں ہیں, 2 جو ہمارے تاریخی پس منظر میں اگر میں جاؤں تو واقعات بہت اہم جو ہیں وہ ایک ہی دن میں ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت 10 محرم الحرام کو ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہمارے سر کے تاج میرے بادشاہ حسین, ان کی شہادت کا دن بھی جو ہے وہ 10 محرم الحرام ہے. اب ہم کوئی خوشی کا لمحہ اور کوئی غم کا لمحہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گردش ایام سے وہی دن پلٹ کے آ جاتا ہے, اسی دن میں ہمیں کوئی تحفہ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے, لیکن وہی دن اگر آ جاتا ہے اور اس میں ہمیں جو ہے وہ غم کی جو کیفیات ہیں وہ مل جاتی ہے یا کوئی ایسا لمحہ دردناک ہمارا اپنا جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, ہم سے جدا ہو جاتا ہے اور تاریخ سیم ہو جاتی ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اب اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے جو مولا علی شیر خدا کے حوالہ سے ہمیں آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے, مولا کی صورت میں, دوست کی صورت میں, ولی کی صورت میں, آقا علیہ السلام کے فرمان سے ہم تک پہنچی, ہم اس کو نہ منائیں. اور ادھر دوسری طرف ہمارے پاس ایک غم کی کیفیت ہے, حضرت عثمان غنی کی بڑی دردناک شہادت ہے اور ہم اس پر بھی سلام نہ بھیجیں تو یہ میں سمجھتی ہوں یہ زیادتی ہوگی, بہت بڑی زیادتی ہوگی, ایک بہت بڑا ہم جو ہے گناہ کریں گے. میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج کا دن جو ہے وہ غدیری ہے, جو وہ خنزیری ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور وہ ادھر جو دوسری طرف جو فساد بپا ہے وہ میں نے جو دیکھا واٹس ایپ کے سٹیٹس پہ جو کچھ لوگ میرے دوسرے مسلک کے ہیں وہ جو اہل بیت طہار کے حوالہ سے اہل تشیع کی طرف سے کلیئر زبان میں کہہ دیتی ہوں, وہ غدیر خم کے اعلان کے ساتھ عید غدیر کے ساتھ نیچے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ من ذالک لعنت کا نشان بنا رہے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نادان ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اہل سنت کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو فتنہ فساد چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نادان ہیں. تو وہ دبے لفظوں میں دونوں طرف سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ ٹھنڈی ایک جو جنگ ہے وہ جاری ہے. کیا فائدہ,
इस जंग का क्या फायदा? क्या ईमान मौला अली अलैहिस्सलाम नहीं है? कुल्ले ईमान है। और क्या हमारे ईमान का हिस्सा उस्मान गनी नहीं है? हम किस डगर पर चल पड़े हैं, किस राह पर चल पड़े हैं? एक छोटा सा आपको नुस्खा देती हूँ, जो मौला अली शेर खुदा वजहुल करीम की ऐलान विलायत का और उनके मौला होने का ऐलान सुनकर खुशी मनाना चाहते हैं तो वो खुशी मनाएं, लेकिन किसी दूसरी शख्सियत को टारगेट करके नहीं, किसी दूसरी शख्सियत पर उंगली उठाकर नहीं। और जो कोई हजरत उस्मान गनी रहमतुल्लाह ताला अलैह रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाला से मतलब उनका सोग मनाना चाहते हैं, वो खुले दिल से उनका सोग मनाएं और बगैर किसी को टारगेट किए। ये भी तो हो सकता है। हमारे पास इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है उम्मत मुसलमान टुकड़े टुकड़े हो गई है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आए मैं आपको फलस्तीन की तरफ ले चलती हूँ, जहां पर नन्हे बच्चों को भूखा प्यासा मार दिया जा रहा है, हमारी मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है, मगर कोई एक जुबान, कोई एक पोस्ट, कोई एक हमारा शेयर या कोई एक ऐसा प्रोडक्ट उनकी जो हमने छोड़ी हो, तो यकीनन आप ईमान वाले हैं अगर आपने ऐसा किया है। लेकिन क्या हम इतने ममालिक हैं, उनमें ईरान भी है, अहले तशय्युद जो इस वक्त ईद गदीर मना रहे हैं और दूसरे जो दूसरे मसलक के लोग हैं, अहले सुन्नत के लोग उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत मना रहे हैं, क्या वो उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो तालीमात है उस पर अमल कर रहे हैं? क्या मौला अली जो दूसरे लोग हैं, दूसरे मसलक के लोग, वो मौला अली शेर खुदा की तालीमात पर अमल कर रहे हैं? इस वक्त हमें जिहाद का ऐलान करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को टारगेट करके, एक दूसरे को तानाजनी करके और एक दूसरे के साथ नफरतें फैला के। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उम्मत मुसलमान टुकड़े टुकड़े ऑलरेडी हो चुकी है और वो मंजर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारे बहन भाई आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान मोमिन जिस्म एक जिस्म की मानिंद है, मगर वो जिस एक को तकलीफ हो, एक हिस्से को, तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। लेकिन हमारा तो सारा हिस्सा कट गया ना फलस्तीन में, लेकिन दर्द किसे? हमें तो पड़ी हुई है कि हम जो है वो किसी को गुस्ताखे सहाबा कहें, किसी को गुस्ताखे आले बैत तहार कहें, तुम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते? क्या तुम आका अलैहिस्सलाम की रस्सी, आका अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि मेरी रस्सी को ला तफर्रकू, कि आपस में फिरके में ना पड़ो, ला तफरीकु, फिरकों को ना अपनाना, आका अलैहिस्सलाम का फरमान छोड़ दिया और हम फिरकों में पड़ गया। जो अहले तशय्युद हैं वो कहते हैं कि हम अहले बैत तहार से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत तहार का दामन छोड़ के इंसान कहीं का नहीं रहता, और सहाबा इकराम का दामन छोड़ के इंसान अहले बैत तहार का नहीं रहता। क्योंकि अगर आप तारीखी पस मंजर में पढ़ें तो आका अलैहिस्सलाम के शहजादे मौला अली शेर खुदा के बेटे उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है, उनकी हिफाजत के लिए मामूर उनके गेट पर खड़े किए गए थे। और मैंने तारीख में पढ़ा है कि जब उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होगी और मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु तक अलैहिस्सलाम तक जब ये बात पहुंची, तो आप खुद आए और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ सख्ती के साथ पेश आए कि तुम उस वक्त कहाँ थे। यानी उनकी मोहब्बतें ये हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम मौला अली के नाम को यूज कर रहे हैं, उस्मान गनी के नाम को यूज कर रहे हैं, अपनी दुकानें चमका रहे हैं, हम में कोई हया ना रही, हम में कोई शर्म ना रही और हम दीन के ठेकेदार बन गए। हमें दो बड़े फितनों को इस वक्त जो है वो सामना है। एक ये कादियानियत जो है वो परवान चढ़ी है, खत्म नबूवत पर लोग डाका डालने की कोशिश कर रही है। दूसरी, उम्मत मुसलमान में सबसे बड़ा इस वक्त जो फसाद है, फलस्तीन को सफाई हस्ती से मिटाने की तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन हमारी तवज्जो उधर नहीं है। हमारी तवज्जो इस मुल्क पाकिस्तान, इस खित्ताए पाकिस्तान में रह के हमने देखना है कि मिंबर पर बैठकर मैं ज्यादा बड़ी गाली निकाल सकता हूँ या मैं उम्मत मुसलमान को गुमराह कर सकता हूँ। हमारा काम था हम फितनों को खत्म करते, हमने फितनों को खत्म तो नहीं किया, मगर क्या किया है कि हमने अपने जितने भी हमारी कम अकली और कम फहमी ने हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि हम उम्मत मुसलमान में सिवाय लड़ने झगड़ने के
अगर मैं सवाल करूं कि ये जो मिंबरों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो अहले तशय्युं के मिंबर पर जाकर बैठने वाले हों या कहीं अहले सुन्नत के, ये दिन में नमाजें कितनी पढ़ते हैं, ये दिन में सदका खैरात कितना करते हैं, ये सहाबा इकराम की तालीमात पे खुद कितना अमल करते हैं और ये अहले बैत तहार पर कितना अमल करते हैं। ये सब दुनियावी बातें एक दूसरे को लड़वाने के लिए, उम्मत मुसलमान को लड़वाने के लिए, मुसलमानों को लड़वाने के लिए साजिशें की जा रही हैं और हम सब उस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, आपका दिल करता है तो आप मौला अली शेर खुदा के इस ऐलान पर, ऐलान विलायत पर आप जो है वो खुशी मनाएं। आपका दिल करता है तो हजरत उस्मान गनी उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर जो है वो आप जो है वो सोग मनाएं, नवाफल पढ़ें, उधर शुक्राने के नवाफल अदा करें और इधर जो है वो उनकी दर्जात बुलंदी के लिए जो है वो आप नवाफल अदा करें, बैलेंस करें, इंसाफ करें। ये अहले बैत अतहार और सहाबा इकराम की जो तकड़ी है वो एक ही थी, इसको बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है और अगर हम इनको लेकर नहीं चलते तो याद रखिएगा कि मौला अली शेर खुदा जो मौला अली का नारा लगाते हैं और दूसरों पर सबो शितम करते हैं सहाबा इकराम पर, कभी भी मौला अली शेर खुदा वो तो अपने गुस्ताखों को गुस्ताखी करते वक्त उनको आप मारते नहीं थे अपनी जात की वजह से, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि उस्मान गनी जैसी शख्सियत के हवाला से जो जिस तरह बदतमीजी और बेहयाई और बेशर्मी के साथ और डिटाई के साथ उन पर माजल्ला सबो शितम करने की आज कोशिश की जा रही है, वो किस तरह बर्दाश्त करेंगे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हैं, वो जुन्नुरैन हैं, दो बेटियों के शोहर हैं और हजरत अली और मुर्तजा के हम जुल्फ हैं और वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि उनको इस तरह की अजियत पहुंचाई जाए। मौला अली को ये अजियत है, जो उस्मान गनी को अजियत दी जाए वो बेसिकली मौला अली को अजियत है, उनकी तालीमात को अजियत है। हम खुद को शियाने अली कह देते हैं, मगर क्या हमने मौला अली की सीरत में से कोई एक ऐसा किरदार अपनाने की कोशिश की है जो उन्होंने अपनाया था? आइए मोहब्बतें बांटिए और इस वक्त जो मसला दरपेश है वो है फलस्तीन और उस मसले को मेरे बहन भाइयों उस पर गौर करिएगा और कोशिश करें कि कुछ नहीं तो अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ ही कर दिया करें कि अल्लाह पाक उनकी गैब से मदद फरमाइए, फिरके छोड़िए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करें, आका की आल से मोहब्बत करें, आका के असहाब से मोहब्बत करें और ये जो टिकटॉकर मौलवी हैं, ये जो यूट्यूबर मौलवी हैं, ये जो पॉडकास्ट पे बैठने वाले मौलवी हैं, ये जो मनाजरे करने वाले मुल्ला हैं, जो मौला अली के सामने दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग उनके सामने उनकी अफजलियत और उनकी शान अफजलियत के हवाला से बात करने की कोशिश करते हैं या उनके बिला फसल अव्वल होने की। आप लोगों ने इनसे क्या लेना है? क्या आपने कभी ये याद रखा है कि आप कब्र में जाएंगे तो आका अलैहिस्सलाम ने अगर ये सवाल कर लिया कि मेरे अबू बकर और उमर और उस्मान और अली में तुम लोग कौन थे फर्क करने वाले, जबकि मैंने फर्क नहीं किया, मैंने हर एक की वजाहत के साथ फजीलत जो है वो बयान कर दी, तो डरें उस वक्त से जब आप अल्लाह की बारगाह में जाएंगे और ये मत तूफान बदतमीजी जो है जो आप लोगों ने शुरू कर रखा है इनको अपने घरों तक महदूद रखें। हाँ, अपने बड़ों को गालियां देनी है तो जरूर दीजिएगा और अपने बड़ों के हवाला से जो अगर आपकी कोई गुफ्तगू है उनको घरों से बाहर निकाले ताकि आप की खानदानी असलियत का हमें भी मालूम हो सके कि आप कहाँ की पैदावार हैं। और खबरदार किसी ने अगर अहले बैत तहार के हवाला से कोई बात की और खबरदार कि किसी ने सहाबा इकराम के हवाला से बात की, सोचिएगा जरूर, मेरे इस पैगाम को शेयर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।